हेलो गाइस। सो डेट है आज 6 मई एंड अभी 10:30 के आसपास कुछ टाइम हो रहा है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अभी अपने डे लो पर ट्रेड कर रहा है। फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, अपसाइड रिट्रेसमेंट एंड अगेन ये फॉल कर रहा है। एग्जैक्टली अभी डे लो के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो चलिए पहले बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके डेली टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट्स एंड सो ऑन। उस तरीके से हम अपना आज का जो बायस है वो हम क्रिएट करते हैं कि क्या आज हमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर, सो यहाँ पर वी कैन सी that there is a rejection over here and there is a rejection from downside too. So there are rejections from upside and downside. Both of the sides there are some rejections. All right, today you can see that market has opened above previous day high. That is a good indication of bullishness, but again market could not sustain above the previous day high, and again it is falling. All right, then here there is a closing of previous day, and this closing can also act as an support. If this closing gets broken, and then we can see these levels also, we can see that it can be tested today again. Now let's check 30 minutes time frame. So over the 30 minutes time frame, what we can see is that here market is like in a slightly uptrend. It was from here to here, it is uptrend, retracement, and again it can go like this or it can fall like this. All right, now let's see with Fibonacci what we have. So from here bottom to top, if we set Fibonacci, then you can see that this is the area of 61%. All right, if we extend it up to here, then we can say that this is the area of 50 and 61%, right? And one more thing is that you can see here it is tested one time, it goes up, again it comes here to test it, again it goes up, again it tests it, and again it goes up. And then if again it comes down to here, then chances are very high that this support is now weaker. And one more thing that I can spot here is that if we just chew it out like this, just look at here, this is a support, right? Support, and again it can come here as a support, and from here it can bounce back to upside. Chances are there, right? And here I can see this is the left shoulder, this can become your head, and this can become your right shoulder. So this is the neckline. Then if this neckline is broken, then the chances are very high that market can reach up to here. These are the levels that we can see today around 32,000, and upside we can see that this is the level of 33,000. So if market stays sideways, then 33,000 upside and 32,000 downside, both the sides are protected, and you can see that a kind of sideways around this line. All right, let's see क्या होता है आज मार्केट में. All right, now चलिए ऑप्शन चेन में भी एक बार नजर देख लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज ऑप्शन चेन एंड लेट्स रिफ्रेश द डेटा. ऑलराइट, सो निफ्टी इज अ काइंड ऑफ bearish, 33,000 and 32,000. bank nifty, sorry, not nifty. As I told you in the chart also, we can see that 33,000 and 32,000 both the strike prices are protected. All right, and here we can see at the money, we can see a short build up from call and put both the sides. This is also an indication of sideways market. Let's look at the chart. If we look at the chart again, 33,000, there is a lot of open interest built up around 33,000 call strike price, and on the lower side 32,000 put side also you can see that a lot of open interest is built up. If we check at the net open interest, here you can see that 33,000 is the main resistance and 32,000 is the main support. 32,500 is the area where we can see short strangle,
not a short triangle, but a short straddle is actually being created over here. And let's look at the maximum pain level. So as of now, maximum pain level is 32,600, 700 and 800. This is the area where market is likely to get expired today as of now. All right. And if we look at the time based open interest, let me refresh it. So you can see that here in the Bank Nifty, the difference from call and put side open interest was 8 lakh, and now from 8 lakh it is now turned to, I think, 34 lakhs. The difference has been increased very highly, indicating us the downtrend has started. And from here you can see that earlier the difference was around 3 crore, and out of 3 crore positive, it is now 91,000 in negative difference, indicating from uptrend to downtrend. So there is a change in open interest that you can see. If we look at the Nifty chart, some reduction has been seen over here. Call side reduction we can see, and the net open interest also, if we look at it, you can see that short of 14,500, 14,600, both the strike prices are protected over here as of now, and 15,000 as being the resistance from the whole week. 14,800 also we can see as a resistance here, and maximum pain level of Nifty is around 14,650, 700 to 14,600, and also we can see 14,550 also. So as of now, there is no clear indication about any directional move. If you look at the chart, we can spot a kind of breakdown over here. If this trend line is broken over here, then we can see an opportunity of shorting Bank Nifty today. As of now, I don't see any opportunity. So what we will do, as usual, we will wait till any opportunity is created for us, for our comfortable zone. All right, and then if I take any kind of trade setups, any entry, all right, then I will update you, right? So let's wait. So guys, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होने की तैयारी में है. ये 30 मिनट्स की कैंडल है. अगर 30 मिनट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया तो उसके बाद व्हाट वी विल डू, ये हो गया अपना ब्रेक डाउन, और वापस जब थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा तो वहाँ से हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं. फिर वहाँ से ये वाला टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, अभी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, दैट्स द मेन थिंग. यहाँ पर एक बार नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे. ऑलराइट, अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले, सो 1 मिनट में आई थिंक ब्रेक डाउन वगैरह दिख गया होगा. ऑलराइट, सो हियर I can see a gap here, and this gap can be filled and then it can fail. I don't know whether it can come over here or not, but market never leaves any gaps. यहाँ पर market जो है एक gap है बहुत बड़ा. यहाँ पर ये gap दो तरीके से इंडिकेट करता है हमें. एक तो इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो ये फॉल है वो इतना शार्प फॉल था, ये गैप क्रिएट हो गया. सो ये शार्प फॉल को इंडिकेट करता है. साथ ही साथ मार्केट जब भी गैप क्रिएट करता है तो एक बार गैप जरूर फिल करने के लिए ऊपर जाता है, वहाँ से फिर नीचे की ओर अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है. सो या तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को क्रैप करने के लिए, यहाँ से बाय, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर ये जो गैप एरिया है वो अपना हम टारगेट लगा सकते हैं. राइट, देखते हैं फ्यूचर में किस तरीके से है. आई थिंक यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है वैसे, बट इस तरीके के ट्रेड्स हम लेते नहीं हैं, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. एज यू नो वेरी वेल कि कभी कभार ठीक है अपने रूल को हमने तोड़ दिया एक आध बार जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, बट बार बार रूल्स को तोड़ना दैट इज नॉट अ गुड थिंग. अल्टीमेटली दैट विल क्रिएट काइंड ऑफ बैड हैबिट और हमें पता भी नहीं चलेगा. ये देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी फॉलिंग वेज है. ये देखिए रेंज, और फिर यहाँ पर ये रेंज देखिए आप. अगर ये रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय भी कर सकते हैं
कीपिंग द टारगेट अराउंड दिस एंड दिस एरिया। सो आप देख सकते हैं एक चीज कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बायस्ड नहीं, मैं सुबह उठ के या सोच के नहीं आया हूँ कि आज मैं मार्केट में शॉर्ट करूंगा, आज मैं मार्केट को बाय करूंगा। ये ऐसी हैबिट होनी ही नहीं चाहिए। हमें अपना जो माइंड है वो माइंड को चार्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। चार्ट में किस तरीके की पैटर्न्स दिख रही हैं, चार्ट में किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर को समझकर हमें अपना जो माइंड सेट है उसे भी चेंज करता रहना पड़ेगा। राइट, वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द चार्ट। एंड यहाँ पर अभी फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हम चेक कर सकते हैं कि एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए। ये देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन व्हिच आई हैड ड्रॉन लाइक दिस। अभी 9 मिनट्स आर रिमेनिंग। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। राइट, और उसके पीछे एक रीज़न भी है कि अगर मैं ये जो टॉप है एकदम, यह टॉप से यहाँ तक अगर मैं फिबो लगाता हूँ, सो व्हाट आई कैन स्पॉट हियर इज दिस इज द रिजेक्शन एरिया। राइट, ये रिजेक्शन एरिया कौन सा है? 61% एंड 50%। राइट, तो 61 एंड 50% जो है उसके बीच में से प्राइस रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, दिस इज द सप्लाई जोन। राइट, यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, दिस इज द वेरी वाइड रेंज कैंडल जो इंडिकेट करती है सेल ऑफ को, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आई हुई है मार्केट। यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, ये देखिए कितने टेस्ट हुए हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हियर टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। राइट, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जितने ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट होते हैं, जितने ज़्यादा टचेस होते हैं, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेक करने की। राइट, दिस इज द हैमरिंग। यहाँ पर हैमरिंग हुआ, ब्रेक नहीं हो पाई, यहाँ पर हैमरिंग हुआ, ब्रेक नहीं हो पाई, अगेन यहाँ पर हैमरिंग हुआ, अगेन ब्रेक नहीं हो पाई, यहाँ पर फिर से हैमरिंग हो रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर दें। 1 2 3 4, अगेन थोड़ा सा अपसाइड जाकर के वापस अगर यहाँ पर आएगा तो शायद ये इसको ब्रेक कर दें। ऑलराइट, दैट्स व्हाट एज ऑफ नाउ आई बिलीव। चलिए वेट करते हैं, आई विल अपडेट यू एज सुन एज आई टेक एनी ट्रेड। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप मिला हुआ है, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। सो 100 क्वांटिटी मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी को अगेन हम कर देते हैं शॉर्ट। चलिए, मार्केट को हमने शॉर्ट कर दिया है, एंड आज ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमने शॉर्ट किया है। तो आई थिंक स्टॉप लॉस जो है अपना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आई बिलीव कि यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। स्टॉप लॉस एज यूजुअल हम 90 पॉइंट्स के आसपास ही लगाते हैं, एंड टारगेट हम दे देंगे अगेन 1:2 का, जो कि ये लेवल पर है। राइट, सो दिस इज द सपोर्ट जोन। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, बट उससे पहले हम निकल लेंगे। एक्चुअली ये सपोर्ट जोन है, वहाँ तक आने से पहले हम अपना टारगेट बुक करके निकल लेंगे। राइट, सो एज ऑफ नाउ बस इसी तरीके से मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अगर ट्रेड अगर हमारे फेवर में चलेगा तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा देंगे। एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगा देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट अपने अगेंस्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 32,865। राइट, सो दिस इज द स्टॉप लॉस दैट वी विल मेंटेन टुडे। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये रिजेक्शन लेवल है, थोड़ा सा यहाँ पर रखना चाहिए एटलीस्ट। कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। 122 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये स्टॉप लॉस। अपने रिस्क जो कैपेसिटी है रिस्क की, उस कैपेसिटी से बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी हो जाए।
ये कितना है देखते हैं। ठीक है, 97 पॉइंट्स के आसपास अपनी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा दिया है। एंड टारगेट जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अब 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आई बिलीव कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये लेवल्स तक। आज कुछ बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से ब्रेक हुई है, सो आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है। एटलीस्ट 32,000 के लेवल तक जा सकती है मार्केट, बिकॉज जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया मॉर्निंग में कि ऊपर जो है वो 33,000 है एज एन प्रोटेक्टेड स्ट्राइक प्राइस, और नीचे जो है वो 32,000 है एज एन प्रोटेक्टेड स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 33,000 के ऊपर प्रोटेक्टेड है। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि यहाँ तक तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। चलिए वेट करते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेड अपना परफॉर्म करता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स वेट। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड आज हमने 9,700 का लॉस बुक किया हुआ है। सो आज मिस्टेक्स हो गई है थोड़ी सी, देख लेते हैं क्या मिस्टेक थी। एक्चुअली मिस्टेक बहुत बड़ी तो नहीं है। ट्रेड सेटअप वाज वेरी कूल, फाइन। ट्रेड सेटअप में कोई मुश्किल मुझे आज नहीं दिखाई दी। एक बार स्पॉट के चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या था मेरे माइंड में जब मैंने ये ट्रेड लिया। ऑलराइट, सो गाइस, अगर यहाँ पर आप देखें, यह 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और साथ ही साथ पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आई वॉज वेटिंग कि एक बार ये नीचे क्लोज दे दे 15 मिनट की कैंडल। ऑलराइट, और फिर यहाँ से जब मैं नीचे आया 5 मिनट्स पर, तो मैंने देखा कि 5 मिनट में इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। ऑलराइट, और फिर लास्ट किस करने के लिए जब ऊपर गया और वहाँ से जब ये रिजेक्शन आ गया, तब मुझे लगा कि अब यहाँ से फाइनली मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है एंड यहाँ से हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। दैट वाज अ थिंकिंग, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम रॉन्ग प्रूफ हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। मार्केट में हमेशा हम सही साबित नहीं होते। अब देख लेते हैं मिस्टेक्स क्या थी। अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट जो है हमेशा गैप्स जो है वो फिल करने के लिए जाता है, गैप कभी नहीं छोड़ता मार्केट। मैंने खुद आपको बताया और मैं खुद यहाँ पर ट्रैप हो गया था। ये देखिए, ये जब मार्केट यहाँ पर था तभी मैंने बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पर गैप फिल करने के लिए ऊपर एक बार ज़रूर जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी गैप नहीं छोड़ता है। सो यहाँ से मैं बाय करने के लिए सोच रहा था, बट दैट वाज नॉट द काइंड ऑफ ट्रेड सेटअप्स दैट वी ट्रेड विथ। ऑलराइट, सो आई जस्ट वांटेड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से एक अच्छा सा फॉल आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। सो इट्स ओके, अब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर लॉसेस नहीं होंगे मार्केट में तो फिर सीखेंगे कैसे, राइट? एक और गलती ये थी जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये गलती ये थी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेड किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैं कभी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करता हूँ। रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखिए, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़ा, भले ही वो 97 पॉइंट्स हैं, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर लिटरली मेरा स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए, करीब करीब दिस कुड बी माई स्टॉप लॉस, जो कि 139 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप तो 13,000 या 14,000 के आसपास मेरा लॉस यहाँ पर रिस्क हो जाता, और वो मेरी रिस्क की कैपेसिटी है नहीं, राइट? सो रिस्क की कैपेसिटी जो है ना,
उसी के हिसाब से हमें स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाने चाहिए. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई I was not able to keep my stop loss over here. So that's why I just kept stop loss around this level. 100 points के नीचे ही मैं अपना stop loss लगाता हूँ most probably. और यहाँ पर वो stop loss hit हो गया and आज हमने बुक किया हुआ है 9,700 रुपीज़. यहाँ पर एक बात बता दूँ कि देखिए, स्टॉप लॉसेस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है. स्टॉक मार्केट में गलत प्रूफ होना कोई बुरी बात नहीं है. चाहे मैं कितना भी बड़ा ट्रेडर बन जाऊं, चाहे हम कितने भी बड़े ट्रेडर्स बन जाएं, स्टॉप लॉस हिट होंगे ही. चाहे वो राकेश झुंझुनवाला जी हो, चाहे वो विजय केडिया जी हो, या फिर चाहे वो कोई बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हों, उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं. ऑलराइट, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम. बट द मेन थिंग इज दैट स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा उतने ही होने चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है. कैपेसिटी से बाहर जब भी जाओगे और तब अगर लॉस हो गया, तब हमें मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुलनेस फील होगा. तब हमें बुरा लगेगा कि यार ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ. यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगा. क्यों? क्योंकि दैट इज अंडर माई कैपेसिटी. रिस्क एपेटाइट जो है मेरा उसी के अंदर है. अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता हूँ और फिर हिट हो जाएगा तो फिर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो है एक्स्ट्रा पैसे मेरे जेब से गए हुए हैं. राइट. और एक और बात यह है कि मार्केट में जब भी आप मिस्टेक करेंगे तो मार्केट आपको माफ़ नहीं करेगा. किसी को माफ़ नहीं करता मार्केट. मार्केट में मार्केट से गलती नहीं होती, गलतियां हमसे होती हैं, मिस्टेक्स हमसे होती हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होते हैं. इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को साथ में रख कर चलिए. रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अंडर प्रोसेस. उसके ऊपर एक दिन अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि रिस्क जो है उसको मैनेज कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, पोजीशन साइज जो होती है हमारी, क्वांटिटी वगैरह, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं. वो सारी चीज़ें एक स्पेशल वीडियो में मैं बना रहा हूँ, सो दैट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिटरमाइन योर पोजीशन साइज, योर रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज बुक किया है 9,700 रुपीज़ एज इन लॉस, और देखते हैं कल कौन सी अपॉर्चुनिटीज वगैरह हमें दिखती हैं.